Okay, so the today's topic is the introduction of the .NET Core. Uh, as you can see in this screen, .NET Core is the new version of the ASP.NET framework, uh, mainly actually targeted to the .NET Core actually platform basically. The .NET Core is actually open source and cross-platform framework basically for building the cloud-based application, web application, IoT application, and mobile backend actually. It is designed to run the cloud as well as on the premises actually. Uh, .NET Core actually ASP.NET 3.x actually run only on the .NET Core 3.x, whereas ASP.NET Core 2.x run only on the .NET Core 2.x. फॉर हेल्पिंग यू मैंने ये दो फिगर भी इसमें डाली हैं. एज यू कैन सी हियर .NET कोर में आप वेब ऐप, क्लाउड ऐप, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, IoT ऐप, AI ऐप, ये सभी आप बना सकते हैं. इट इज़ वेरी पावरफुल एक्चुअली. एंड हियर यू कैन सी हियर in the previous version, actually the ASP.NET Core 2.0, you can run it on, you will require the .NET Core 2.x only. You can run it on .NET Core 2.x only. But in .NET Core 3.x application, you can run on both actually, on the 3.x and 2.x both actually. And as you know, these are the platform independent. Okay, so this is the architecture of .NET Core. Here you can see the client request here goes to the IS server and goes to the elements of the .NET Core. Here you can see in the bottom side the identity. For the identity you can use the any third-party providers actually. The EF Core provider, authentication provider, Azure Activity Directory also. You can also use the other web API clients for the email services. You can also use third-party services, many third-party services you can use. SMS service also you can use third-party services. And the another component is Azure services. For using the Azure services, you can connect directly to the Azure service bus. So with the help of that, you can use the connect all functionality of Azure. External cache you can also use in the entity framework basically. And you can see the other module actually, the validation filter, response caching filter, and the memory. So this is the architecture diagram of ASP.NET Core. There are some other diagram also you can find. You can Google it, and so different way of showing the same thing. So if you have doubt, you can explore other diagram also. So actually I want to start from here so that you can have some idea before I go through the deep. Actually this is the basically the sample project solution. So you can see that how solution is looking like. Here you can see different the controller folder, the main folder, models and views. ये तीन मेन फोल्डर्स हैं बेसिकली. MVC फ्रेमवर्क अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर MVC
फ्रेमवर्क के बेस पे अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इससे पहले एक मेन फोल्डर है प्रॉपर्टीज़ फोल्डर, जिसमें कि प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन भी हम रखते हैं। जब भी एप्लीकेशन को स्टार्ट होती है तो सबसे पहले वो कॉन्फ़िगरेशन वहाँ से फाइल से रीड करता है प्रॉपर्टीज़ से। देन उसके बाद ये program.cs पे आता है एंड देन इट कम टू द स्टार्टअप। उसके बाद एप्लीकेशन लोड होती है। तो these are the main files: program.cs, startup.cs, the properties folder, and the controller model and views folder. Actually, these are the main actually. And of course, application setting.json, and this is also very important actually if you want to change some setting of the application. So थोड़ा सा डिटेल इसके देखते हैं। प्रॉपर्टीज फोल्डर कंटेन्स ए फाइल्स कार्ड launch setting.json. This JSON file contains all the project specific settings needed to launch the application. सबसे पहला बेसिकली ये यहीं पर ही जाता है प्रोजेक्ट सेटिंग्स लोड होने से पहले। We will find debug profile environment variable that should be used. It is in this file actually. इसके बाद www root folder है। This is also important basically. इसमें सब फोल्डर बेसिकली होते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड इमेजेस। इन फाइल्स को रखने के लिए इसमें सब फोल्डर होते हैं। गो टू दिस फोल्डर एंड एनी सब फोल्डर अंडर इट। इस फोल्डर के अंदर आप कोड फाइल नहीं रख सकते हैं। कोड फाइल आपको आउटसाइड दिस फोल्डर रखना होगा, because in that case that will not work actually. कोड फाइल्स में C# फाइल्स, रेजर फाइल्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स ये हैं, ये इंक्लूड्स हैं बेसिकली। अनदर इम्पॉर्टेंट एक्चुअली ये मैं बताना भूल गया था, डिपेंडेंसी एक्चुअली। यस, सो डिपेंडेंसी आपको ऐड करनी पड़ेगी किसी प्रोजेक्ट में बेसिकली। बाय डिफ़ॉल्ट NuGet पैकेज है फॉर द सर्वर साइड डिपेंडेंसी एंड क्लाइंट साइड डिपेंडेंसी के लिए libman एक्चुअली यूज होता है इसमें। तो ये पैकेज आपको ऐड करने होंगे बिफोर starting the application, compiling the application, and other packages you can also add as per your requirement. Now come to the program.cs actually. program.cs actually .NET Core एप्लीकेशन कंसोल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट ही होता है एक तरह से बैकग्राउंड में। जैसे कि कंसोल एप्लीकेशन में हमारे पास मेन एक मेन फंक्शन होता है बेसिकली स्टार्ट करने के लिए। यहाँ से बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट यही है इसका। एंड वी कैन क्रिएट ए होस्ट फॉर द वेब एप्लीकेशन हियर। सो इन द build web host method we are creating a web host application. So after that when actually the use startup method will be called, it will come to the startup.cs actually. यहाँ पर there is a class, startup class. This is like a global.asax in the traditional .NET application. सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होता है जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होता है बेसिकली। द स्टार्टअप क्लास कैन बी कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग यूज स्टार्टअप। एज यू कैन सी यहाँ पर आप ऊपर program.cs में यहाँ पर आप और कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं डिपेंड अपॉन अगर आप यू वांट टू चेंज सम कॉन्फ़िगरेशन एट द रन टाइम एक्चुअली।
सो यहाँ पर ये तो जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट थे जो स्टार्टअप के लिए, प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी थे, यह था। इसके बाद में कुछ एडवांस फंक्शनैलिटीज़ हैं, कुछ मेन फंक्शनैलिटीज़ हैं, सॉरी फंडामेंटल्स। सबसे पहले फंडामेंटल्स पे आते हैं हम लोग। जैसे कंट्रोलर्स, एक्शन मॉडल्स, आप सब लोगों को वैसे पता है, लेकिन कंट्रोलर्स यहाँ पर बेसिकली क्या वर्क, किस तरह से वर्क करता है, मॉडल्स किस तरह से है, वो थोड़ा सा फिर भी मैं बता देता हूँ। Controllers are the brain of ASP.NET Core application. They process incoming requests, perform operations on model data, and select views to be rendered to the user. Controllers are stored inside the controller folder in the root of web application. They are basically C# classes. Those public methods are called as a active method. These active method handles the HTTP request and prepare the response to be sent to the client. So basically जो भी हमारे HTTP रिक्वेस्ट जो होती है वो बेसिकली कंट्रोलर में के एक्शन मेथड को कॉल करती है और वहाँ से स्टार्ट होता है जो भी आगे का प्रोजेक्ट को, जो भी आगे काम करना है वहीं से स्टार्ट होता है। एक्शन मेथड क्या है? एक्शन मेथड एक सिंपली पब्लिक मेथड है इन द कंट्रोलर एक्चुअली ऑन ए कंट्रोल टाइप इज एक्शन। पैरामीटर ऑन एक्शंस आर बाउंड टू द रिक्वेस्ट डेटा एंड वैलिडेटेड यूजिंग मॉडल बाइंडिंग। सो मॉडल बाइंडिंग बेसिकली के थ्रू जो है वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है। इसके बारे में आप खुद से पढ़ सकते हैं मॉडल बाइंडिंग क्या है। सब एक्चुअली सारे टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। सो एक्शन मेथड should contain logic for mapping an incoming request to a business concern. Business concern should typically be represented as a services for your controller access through dependency injection. Action then maps to the result to the business action to a application state. सो एक्शन मेथड बेसिकली यूजर से रिक्वेस्ट लेते हैं और डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू आपके जो मॉडल के मेथड्स होते हैं उनको, जो बिजनेस लॉजिक है उसको कॉल करके और फाइनली आपको रिजल्ट दे देते हैं। एक्शन कैन रिटर्न एनीथिंग बट फ्रीक्वेंटली विल रिटर्न ए इंस्टेंस ऑफ आई एक्शन रिजल्ट। It produces a response. The action method is responsible for choosing what kind of response. So the action result does the responding actually. अब मॉडल्स बेसिकली क्या है, जो मेन बिजनेस लॉजिक होता है वो बेसिकली मॉडल्स में हम रख सकते हैं और जो डेटाबेस से डेटा हमें लेना है वो मॉडल से ही, डेटाबेस से हम कनेक्शन बनाते हैं और बिजनेस लॉजिक के लिए जो भी इनपुट डेटा चाहिए डेटाबेस से वो हम लेके और प्रोसेस करके और फाइनली रिजल्ट जो है हम कंट्रोलर के एक्शन मेथड को रिटर्न करा देते हैं बेसिकली। और ये आप पढ़ सकते हो, मॉडल इज ए क्लास दैट कंटेन्स ए बिजनेस लॉजिक of the application. It also used for accessing data from the database. The model class does not handle directly input from the browser. तो ब्राउज़र से इसको भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है बेसिकली, इसको ये इनपुट केवल कंट्रोलर के एक्शन मेथड से लेता है बेसिकली, वहाँ से ये कॉल होती हैं बेसिकली। इट डज नॉट कंटेन एनी HTML कोड एज वेल। सो बेसिकली प्योर बिजनेस लॉजिक होता है मॉडल क्लास में। Models are also referred as a object that are used to implement conceptual logic of an application. The controller interacts with the model, access the data, perform the logic and pass the data to the view. अब views क्या हैं? ASP.NET Core View is a user interface which displays data
from the model to the user in the browser actually. It also enables them to modify this data. They reside inside the views folder located in the root of the application. This folder can contain a separate folder for each of the controller action method. Okay. So basically अगर हम यहाँ पर आए हैं तो you can see here मॉडल्स में बेसिकली जैसे स्टूडेंट मॉडल, अब अगर हम देख रहे हैं तो स्टूडेंट मॉडल के लिए एक स्टूडेंट करके फोल्डर व्यू में एक अलग है और उसके अंदर उसका बेसिकली HTML पेज होता है। तो सेम ही नाम होते हैं बेसिकली कंट्रोलर मॉडल्स एंड व्यूज़ के अंदर। कंट्रोलर में जो नाम होगा उस हिसाब से मॉडल का नॉर्म, हालांकि हम चेंज भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वही होता है इस तरह से। ओके, so URL routing, basically ASP.core URL routing is used to create a URL platform for your application. It matches incoming HTTP requests and dispatching those requests to the application endpoints. Endpoints are those units that are responsible for request handling. These are defined in the configure method of starter class. The following system has two main functions: map the incoming URLs to the controller and action, generates outgoing URL so that a specific action method is called when the user clicks on it. Basically कंट्रोलर का किस एक्शन मेथड को हमें कॉल करना है उससे पहले हमें उसकी URL राउटिंग करनी पड़ती है और ये हम डिफाइन करना पड़ता है हमें startup.cs क्लास के अंदर। उसमें कॉन्फ़िगर मेथड होता है, वहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मैं अभी डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ ए इंट्रोडक्शन एक्चुअली, सो दैट जस्ट कि आप अवेयर हो जाओ ये सब क्या क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ पर इसकी डिटेल हम पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। उस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ये कंट्रोलर का वो पर्टिकुलर एक्शन मेथड कॉल करता है और वो URL हम यूज़ करते हैं, जो भी HTTP पेज जो हमारा होता है HTML पेज, वहाँ पर उस URL को यूज़ करते हैं कॉलिंग के लिए, कंट्रोलर के एक्शन मेथड के लिए। ओके, सो नाउ वेब ऐप के अलावा वेब API भी होता है। दीज आर द सेम थिंग बट थोड़ा डिफरेंस ये है कि वेब API डेटा रिक्वेस्ट लेता है और डेटा रिटर्न करता है। ASP.NET Web API is a extensible framework for building HTTP based service, can be accessed in different application on different platforms such as web, window, mobile. It works more or less the same way as ASP.NET MVC web application, except that it sends data as a response inside a HTML view instead of HTML view. It is like a web service or WCF service, but the exception is that they only support HTTP protocol. तो यूजिंग वेब API का यूज़ हम जो है डायरेक्ट HTTP रिक्वेस्ट में भी कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन के थ्रू, और मोबाइल एप्लीकेशन भी सेम वेब API को यूज़ कर सकती है, और हमारा जो विन फॉर्म है हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली एक तरह से लाइब्रेरी हमारी ये है जहाँ पर, लेकिन ये HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू ही काम करती है बेसिकली। और बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वेब API, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में है बेसिकली।
Now come to the deployment part. Actually, .NET Core provides three different types of deployment model for this deployment. Actually, the framework dependent deployment. Actually, the framework dependent deployment mode applications are completely dependent upon the .NET Core installed on the target machine. बेसिकली इसके अंदर पैकेज जो हम बनाते हैं इसमें फ्रेमवर्क इनबिल्ट नहीं होता है, कंबाइंड नहीं होता है, वो टारगेट मशीन पे ही के ऊपर जो फ्रेमवर्क पड़ा है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है. व्हेन यू वांट टू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन ओनली कंटेन्स द ऐप स्पेसिफिक कोड एंड एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज. केवल ये दो चीज़ें हैं वो एप्लीकेशन कंटेन करता है. फ्रेमवर्क जो है, जो टारगेट मशीन होती है उस पर जो फ्रेमवर्क पड़ा है उसी के ऊपर डिपेंड होता है. एक सेल्फ कंटेंट डिप्लॉयमेंट है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. इट डज नॉट यूज कॉमन .NET कोर इंस्टॉल ऑन द सर्वर. अगर सर्वर पे जहाँ पे भी हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं इस कंपोनेंट को, वहाँ पर अगर कोई .NET कोर का कोई भी फ्रेमवर्क का वर्जन पड़ा है उसको यूज नहीं करता है ये. द फाइनल एप्लीकेशन बिल्ड कंटेन्स ऑल द ऐप स्पेसिफिक कोड एंड इट्स डिपेंडेंसीज अलॉन्ग विद .NET कोर लाइब्रेरीज एंड द .NET कोर रन टाइम. तो बेसिकली ये सब कुछ अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है, लाइब्रेरीज भी, रन टाइम भी. सो ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज होता है. आप किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते कि जहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो वहाँ पर कुछ फ्रेमवर्क है या नहीं है इंस्टॉल्ड ऑलरेडी. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव .NET कोर रन टाइम इंस्टॉल ऑन द सर्वर्स. So as .NET Core is cross-platform, we can build our code depending upon the platform we want to run on this app. So ऐसा नहीं है कि हमने कोई पैकेज बनाया और वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली चल जाएगा. जब भी हम पब्लिश करते हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस प्लेटफॉर्म के लिए हम कोड पब्लिश कर रहे हैं. विंडो के लिए है, लाइनक्स है, या मैक के लिए कर रहे हैं वो 32 बिट है या 64 बिट है, उसी हिसाब से हम जो है कोड पब्लिश करते हैं. हाँ, ये बात सही है कि सेम ही कोड हमारा को हम अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से पब्लिश करके इसको रन कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर. तीसरा टाइप है फ्रेमवर्क डिपेंडेंट एग्जीक्यूटेबल्स. इसमें फ़र्क केवल ये है कि इसमें EXE बनती है, अलग अलग फाइलें से ना होके टोटल एक मेन EXE फाइल बनती है. अदरवाइज सब सेम है पर लाइक FDD. अब आते हैं हम कुछ अलग कोर फीचर्स पे. This is the cross platform and container support. With the introduction of the .NET Core, you can now create ASP.NET application and deploy them on Windows, Linux and Mac OS. एक बार एप्लीकेशन आप कोड लिखोगे और इन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो. बस आपको केवल .NET Core फ्रेमवर्क आपको डालना पड़ेगा, और अगर वो भी नहीं है तो भी आप अपने पैकेज में इंक्लूड करके इसको वहाँ पे चला सकते हो. कंट्रोलर्स लाइक कंटेनर्स लाइक डॉकर एंड अदर टेक्नोलॉजी आर ऑल हाई डिमांड. एक्चुअली ये डॉकर कंटेनर को भी फंक्शनैलिटी भी इसमें है. आप जब भी प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें एक डॉकर को डॉक्यूमेंट की एक फ़ाइल होती है, वहाँ पर उसकी सेटिंग कर सकते हो. तो हैंड टू हैंड वो उसके हिसाब से भी कोड भी बिल्ड कर देता है. बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एजोर हैज़ सपोर्ट फॉर डिप्लॉइंग आवर एप्लीकेशन ऑन द कंटेनर्स.
ओके, सो एक्चुअली मैं सोच रहा था यहाँ पर एक इमेज दिखाने की, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कोई रिलेटेड इमेज नहीं मिली, सो डैट यू कैन हैव बेटर व्यू। ओके, इस टॉपिक को अलग से मैं कभी फर्दर डिटेल में ले सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं, बड़े बड़े टॉपिक हैं बेसिकली, डिटेल एडवांस लर्निंग सीरीज में इनको ले सकते हैं बेसिकली। ओके, तो नेक्स्ट इज हाई परफॉर्मेंस in the introduction to ASP.NET Core and the Castrol web server actually। Castrol वेब सर्वर के बेसिकली इसमें इनबिल्ट आया है, जैसे IIS सर्वर होता है, और बहुत ही हाई परफॉर्मिंग है, फास्टेस्ट वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क अवेलेबल जो है वो इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है। तो कैस्टल इज ओपन सोर्स कोड अवेलेबल, गिटहब पर इसका सोर्स कोड अवेलेबल है। इवेंट ड्रिवन एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट बेस्ड सर्वर यूज टू होस्ट ASP.NET एप्लीकेशन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। तो ये सेम बेसिकली किसी भी प्लेटफॉर्म, इसको यूज़ करके हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपका जो एप्लीकेशन है वो होस्ट कर सकते हैं। इट इज़ ए लिसनिंग सर्वर एंड कमांड लाइन इंटरफेस। You install the listening server to a window or Linux server and the command line interface on your computer. It was launched by Microsoft along with the ASP.NET Core। तो बेसिकली ASP.NET Core के साथ ही इसको लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने। All ASP.NET Core apps utilize a new MVC framework and Castrol web server। ASP.NET Core application to be run easily on other cross-platform web servers such as Nginx and Apache। आप अलग होस्टिंग के लिए और वेब सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू, लेकिन आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस सेल्फ जो उसके साथ इनबिल्ट वेब सर्वर आ रहा है सफिशिएंट है। Okay, so this is very main thing, asynchronous वेट एक फैसिलिटी इसमें दी है। आप अपने बेसिकली पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को एसिंक्रोनस मोड में चला सकते हो, सो डैट जो आपको जो है बेसिकली आप आगे बढ़ सकते हो, बशर्ते कि वेट करके उसका रिजल्ट आए। ASP.NET has excellent support for utilizing asynchronous programming practice। Asynchronous is now implemented in all the common .NET framework classes। लगभग सभी क्लासेस में ये इम्प्लीमेंटेड हो गया है। तो एंड द मोस्ट थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, सभी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी में भी इन्होंने ये मोड ऑन कर दिया है। मोस्ट मॉडर्न एप्लीकेशन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम एंड CPU cycles waiting for database queries, web service calls and other input-output operation to complete। One of the reason ASP.NET Core is faster is its extensive use of asynchronous pattern with the new MVC and Castrol framework। तो बड़ी इम्पोर्टेंट फीचर इन्होंने दी है इसके हेल्प से, कि अगर कोई प्रोसेस ऐसा है जो बहुत डेटाबेस से जिसका इंटरेक्शन है और ये लंबा समय लेगा, तो आप इसको एसिंक्रोनस मोड में चला सकते हो, और जब भी वो प्रोसेस पूरा होगा आपको अलर्ट आ जाएगा और आप उसका रिजल्ट शो कर सकते हो। तो इससे एप्लीकेशन बहुत फास्ट हो जाता है। यूनिफाइड MVC एंड वेब API फ्रेमवर्क। तो बिफोर ASP.NET Core, developers were most commonly using MVC and Web API framework। MVC was tailored for creating web application that served up HTML। Web API was designed to create RESTful service using JSON and or XML actually।
with the ASP.NET Core, MVC and Web API have been merged together. These are always a lot of overlap with the two framework. MVC could always return JSON data instead of HTML. So ASP.NET Core से पहले बेसिकली वेब API पहले भी था, लेकिन ये सेपरेट था। और वेब API का यूज़ करके आप बेसिकली आपके जो वेब पेज थे वो केवल HTML में सर्व करते थे बेसिकली। अब इसको यूज़ करके आप JSON डेटा भी HTML पेज को रिटर्न कर सकते हो। तो ये मर्ज कर दिया है बेसिकली दोनों को, और ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें एक ही हैं। बशर्ते कि केवल जो वेब API है वो जो डेटा है वो JSON फॉर्मेट में रिटर्न करता है, जो कि अब आप HTML पेज को JSON डेटा भी आप डेटा दिखा सकते हो आप। तो ये एक मेन फैसिलिटी इसमें इन्होंने मर्ज करने के बाद दे दी है। ओके, सो इसमें मल्टीपल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट मोड, बेसिकली इन्होंने इसमें सेटिंग में ऑप्शन दिया है कि आप अलग अलग सेटिंग यूज कर सकते हो अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए आपको, जैसे कि यहाँ पर इस इमेज में अगर आप देख रहे हो तो जावास्क्रिप्ट की जो फाइलें हैं वो अगर आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हो तो वो लोकल ना यूज़ करके ग्लोबल फाइलें यूज़ कर रहे हैं, और डिपेंड अपॉन एनवायरनमेंट अलग अलग पास से आप फाइलें उठा रहे हो। टेस्टिंग और प्रोडक्शन के लिए आपने अलग दिया है, डेवलपमेंट के लिए अलग दिया है। डेवलपमेंट के लिए लोकल है, सॉरी। तो अलग अलग जगह से आप फाइल यूज़ करते हो डिपेंड अपॉन सेटिंग। ओके, सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक्चुअली ये अच्छा खासा अपने आप में बड़ा टॉपिक है, लेकिन मेन समरी में बताता हूँ बेसिकली इसके बारे में। वन ऑफ द great new features of ASP.NET Core is built-in dependency injection. It is heavily used within ASP.NET MVC itself. It is preferred way that things like logging context, database context, and other things are passed into the MVC controller. ASP.NET Core injects objects of dependency class through the constructor or method by using built-in LOC container। जैसे कि इस नीचे इमेज में आप देख पा रहे हो, इसमें लॉगर फैक्ट्री का जो इंस्टेंस है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इसको पास कर दिया है कंट्रोलर के जो आपका कंस्ट्रक्टर मेथड है उसमें, और फिर इसको आप यूज़ कर सकते हो कोड के अंदर लॉगिंग के लिए। इसी तरीके से कोई भी मेथड आपको जैसे कि डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट है, लॉगिंग का इसमें एग्जांपल दिया ही हुआ है, उनको आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू कंट्रोलर को पास कर सकते हो, और आगे फिर कंट्रोलर में उसका इंस्टेंस का यूज़ करके जो भी उसमें फैसिलिटी है, फंक्शनलिटी है, वो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसको आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा forum.cs में पहले, वहाँ पर उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, वहाँ पर इनिशियलाइज करना पड़ेगा। वो डिटेल में अगर हम जाते तो वहाँ पर मैं बताऊँगा आपको। वेब सॉकेट एंड SignalR. ASP.NET has first-class support for WebSocket. This can be used to persist long-running connections and communicate back and forth with the browser. SignalR is a full framework that is also available that makes it easy to handle common scenarios. Actually, जो लॉन्ग रनिंग कनेक्शन अगर आपका है और आप बेसिकली जैसे कि नीचे एग्जांपल भी इसमें दिया हुआ है, ये एग्जांपल है, इसमें डेटा, ये पेज है,
स्ट्रेटजी पेज है और उसमें डेटा जो है फ्रिक्वेंटली चेंज होता है 2 मंथ। तो बेसिकली लॉन्ग रनिंग कनेक्शन इसमें चाहिए आपको, तो इसकी हेल्प से आप एक कनेक्शन बना सकते हो और वो थोड़ी थोड़ी देर में वो अपने आप को प्रोसेस करके उसमें डेटा अपडेट करता रहेगा। तो वहाँ पर ये बेसिकली वेब सॉकेट और सिग्नल आर यूज होते हैं फॉर द लॉन्ग रनिंग कनेक्शन इस टाइप की सिचुएशन के लिए बेसिकली। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट forgery, actually cross-site request forgery is a attack that force an end user to execute unwanted action on the web application। कोई दूसरा यूजर आपका जो कम्युनिकेशन चल रहा है ब्राउज़र के थ्रू उसको हैक करके अपना जो भी अपना डेटा है या आपका डेटा चुरा ना सके, उसके लिए ये बेसिकली फीचर इन्होंने दी है। इसमें बेसिकली क्या होता है, एंटी फोर्जरी टोकन्स इन्होंने बेसिकली दिया है, जनरेट करता है। उसके बेस पे हम उस टोकन के बेस पे ही कम्युनिकेशन करते हैं, और क्योंकि थर्ड पार्टी यूज़र को वो टोकन का आइडिया नहीं होता, इसलिए वो आपको आपके कम्युनिकेशन के बीच में उसको हैक नहीं कर सकता है। डिटेल में आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, एंटी फोर्जरी टोकन्स क्या होता है। ओके, सो सेल्फ होस्टेड वेब एप्लीकेशन, many times we need to deploy web application on the desktop directly, not on the server which has IaaS actually. To handle these kind of scenarios, we can make use of self-hosting features in the ASP.NET Core. These are many ways available to develop and deploy self-hosting ASP.NET web application. In the .NET Framework 4.5, we can do this by using Ovin, Nancy or WCF. However, they are using ASP.NET Core. We don't need to depend on these features. We can directly use standard Kestrel web server actually, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट है Kestrel web server। सो जब हम डेवलपमेंट मोड में काम करते हैं तो बेसिकली जब हम रन करते हो सेल्फ होस्टेड एप्लीकेशन का फीचर का ये यूज करके ब्राउज़र में आपका एप्लीकेशन ओपन करता है ये। तो अलग से हमें कोई सर्वर डालना नहीं पड़ता, IaaS सर्वर या वो वहाँ पे डिप्लॉय नहीं करना पड़ता, सेल्फ होस्टिंग मोड में ये काम करता है। इसके पैकेज में भी वो इनबिल्ट होता है, तो उसके लिए भी हमें मशीन पर वो डालना नहीं पड़ता अलग से। सो एक्शन फिल्टर द अनदर टॉपिक, वन ऑफ द गेट फीचर of ASP.NET is support for extensible filters actually. This allow you to implement functionality that can be applied to an entire controller or action without modifying the action itself. Filters are used to specify caching, error handling, authorization or any custom logic that would like to implement it. सो जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे हो, आउटपुट कैश इस तरह से एक्शन फिल्टर को हम यूज करते हैं। ड्यूरेशन इज इक्वल टू 10, जो 10 सेकंड के लिए जो है आउटपुट कैश को यूज करेगा इस तरह से हम। और नॉट ओनली आउटपुट कैश, इसी तरीके से बहुत सारे एक्शन फिल्टर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। ये तरीका है उनको यूज़ करने का इसमें, उसके बारे में आप डीपली पढ़ सकते हो। और एक्सटेंसिबल आउटपुट कैशिंग, आउटपुट कैशिंग enables the developer to store HTTP response and page output in memory. Using output caching features,
ASP.NET can serve the subsequent request more quickly by retrieving the data from memory. अलग से एक्सटर्नल आउटपुट कैशिंग आप यूज़ कर सकते हो डेटा को जल्दी से आप दिखाने के लिए. द लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच इज इट हैज़ द स्टोर द कंसेंट ऑलवेज इन द मेमोरी. मेमोरी में रहेगा, ये तो लिमिटेशन इसमें है ही. ASP.NET 4.0 having a extensibility of option for output caching by configuring custom output caching providers. Output cache providers can use any storage mechanisms to persist HTML content. They can include local or remote disks, cloud storage, distributed cache engines. So इसमें क्या है कि आप कैशिंग के लिए अलग से टूल भी यूज़ कर सकते हो. रिमोट डिस्क में भी कैश कर सकते हो अपना डेटा. क्लाउड स्टोरेज का भी यूज़ कर सकते हो कैश करने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटेड कैश इंजन का भी यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन बढ़ जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है. मेमोरी का आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा. ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन. So ASP.NET Core makes it easy to localize dates, number, and the text within the web application. In case we want our application to be used across the globe, localization will be the answer. Using resources file, we can enable the customization in our application to give multi-language support. We can consider these resource files as central repository where all the text of multiple languages are kept. The application can just read this resource file to the possible the labels based on the different regions. There are two types of resources: local resources specific to the page, or global resources common for the whole website. So अगर आपकी वेबसाइट अक्रॉस दी कंट्री एक यूज हो रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड यूज हो रही है, तो उसका जो कैप्शंस हैं बेसिकली वो आपको अलग अलग लैंग्वेज में दिखाने पड़ते हैं. तो वहाँ पर इस फीचर्स का बहुत बड़े तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं. वहाँ का जो लोकल टाइम है बेसिकली वो भी यूज़ कर सकते हैं, और जो टेक्स्ट है लोकल लैंग्वेज है उसको आप यूज़ कर सकते हो. और उसमें भी ऑप्शन है कि आप उसको हर पेज के लिए यूज़ करना है अलग अलग, या उसको ग्लोबल रिसोर्स वहाँ पे कॉमन एक जगह आप यूज़ कर सकते हो. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दी है ऑलरेडी. तो उसके लिए अलग से आपको कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा. पहले अलग से स्ट्रक्चर बनाने पड़ते थे इन चीज़ों के लिए, अपने खुद के स्ट्रक्चर बनाने पड़ते थे. वो फीचर इसमें है ऑलरेडी. तो जिस लैंग्वेज में भी आप काम कर रहे हैं, आप कंफर्टेबली उसमें आपके जो भी कैप्शंस हैं, पेज कैप्शन वगैरह बनाइए. उसके बाद रिसोर्स फाइल आप यूज़ करके अलग अलग लैंग्वेज के कैप्शन आप दिखा सकते हो. Swagger Open API. If you are creating API application, you want to make sure you are using Swagger. It makes it easy to document and test your API. Swagger is a set of open source tools built around the Open API specification that can help you design, build, document, and consume REST API. ASP.NET has historically provided built-in functionality that is pretty similar to SOAP, web services created with WCF. If you are using Web API or MVC for RESTful API, you definitely want to use Swagger. Basically, अगर आप वेब API लिख रहे हैं तो बेसिकली आपको जो आप पैकेज बनाते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से, इसमें इनबिल्ट ऑलरेडी दिया हुआ है Swagger के यूज़ से आप उसको ऑलरेडी उसको एक ऐसी जगह पर डाल सकते हो जहाँ से आप
उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो उस लिंक को। स्वेगर के बारे में डायरेक्टली आप उसको अलग से पढ़ सकते हैं। दिस इज ए बेसिकली दिस ये हेल्प करता है आपकी जो पैकेज को स्टोर करने के लिए एक सेंटर पोजीशन पे, सो डैट कि वहाँ से आप यूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हो कहीं पे भी इसका लिंक यूज़। ओके, सो ये कुछ अलग और टॉपिक हैं, इसके बारे में मैं खैर समय नहीं मिल पाया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप डेवलपमेंट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कोर एस के कौन कौन सी लाइब्रेरी इसमें है और कौन सी आपको यूज़ करनी है। सॉरी, समय नहीं मिल पाया इसको कवर करने का, ये मैं चाहता था। बाकी और भी चीज़ें हैं, ये भी बड़ा इरेजर भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैसे काफ़ी। टैग हेल्पर्स, मॉडल बाइंडिंग, मॉडल वैलिडेशन, फिल्टर्स, ये सब आप अलग से एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी जो टॉपिक मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लगे थे वो मैंने कवर किए थे इसमें। सो एक्चुअली दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कैन यू प्लीज़ आस्क।